Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we will be starting with the 6th chapter, Way to School We Met. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? जब हम स्कूल गए तो हम किस किस से मिले, किससे मिले हैं, किन लोगों से मिले हैं? All of you go to school and you see many things and you meet many people. Yes or no? Yeah. Okay. So as usual, before we start the chapter, we will be doing a warm-up exercise. So in that, what you have to do today, take a food item like a mango or a potato. Close your eyes. Picture all the people who worked hard to bring it to your plate. देखिए, जब हम कभी भी खाना खाते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि अरे ये किस तरह से हमारे पास आया होगा, उसके लिए कितने लोगों ने मेहनत की होगी. The hard work behind the food when it comes to our plate which we eat, who all have worked so hard. किस किसने किया होगा? इसमें एग्जाम्पल भी दिया होगा. द फार्मर, वो किसान है ना. अगर वो खेती नहीं करता, अगर वो इन सब चीज़ों को, जो खाने की चीज़ें उनको नहीं उगाता एक किसान, तो क्या वो हम आसानी से खा पाएंगे? क्या वो हम तक पहुंच पाएगी? So we should be very thankful to that person. See, we sit in AC in a room and where these farmers are working hard in the open field, whether it is chilling cold or hot weather, whether it is raining or it is windy. तो हर तरह के मौसम में वो किसान किसके लिए मेहनत करता है? हम लोगों के लिए, कि हम तक अच्छा खाना पहुंच सके. फिर जब वो पूरा की पूरी, इसको कहते हैं ना, फसल तैयार हो गई है, तो उसको उगाता कौन है? किसान. हु ग्रीव इट. उसको कौन उगाता है? किसान उगाता है. इज इट क्लियर किड्स? देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? द पर्सन हु गॉट इट टू द शॉप, वहां से कोई शॉप तक भी तो लेकर आते हैं, तो काफी सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं. तो द ग्रीन ग्रोसर हु सोल्ड इट. सो कौन होता है ग्रीन ग्रोसर? हु इज द ग्रीन ग्रोसर? ग्रीन ग्रोसर कैन बी अ रिटेलर, होलसेलर, हाँ, हु सेल्स इट. और ग्रीन ग्रोसर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई चीज पेड़ में उगती है, व्हेन वी से ट्रीज वी मार्क विद ग्रीनरी, नेचर, तो एक उसको नाम दे दिया ग्रीन ग्रोसर. एंड ग्रोसरी मीन्स वी से ना, गो टू द ग्रोसरी शॉप टू परचेज द आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड, टू परचेज द आइटम ऑफ किचन. तो खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली खाने की चीज़ों को बेचने वाले को क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर. और उसमें से भी जो वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको बेचते हैं. तो पहले किसान उसको प्रिपेयर करता है, फिर वो दूसरे लोगों के थ्रू मार्केट तक आती है. ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको गोडाउन्स में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर हाउसेज होते हैं. उसके बाद वहाँ से वो होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास आती है. तो देयर इज अ प्रॉपर चैनल. द पर्सन हु क्लीन्ड एंड कुक्ड इट एंड सो ऑन, हु इज डूइंग दैट? योर मदर who cleans it and cooks it, or any other person in your family might be doing this work. So we should be grateful and thankful. As a kid we cannot do it, we have to learn all this, so we have to be very very thankful for this. Can you name what do you feel grateful for? Say thank you to all of them. So you should thank the farmer first who is growing it, all those people who are bringing to the market, the wholesalers, retailers, that is the green grocers, and to all those people, your mother or the helpers or other relatives, maybe your grandmother or any other, your sister or brother, whosoever is cooking it, your father who is preparing food for you, you have to be very very thankful. उनको आपको thanks करना चाहिए. Clear? So now coming to the B part, can you see this? Okay, I'll just move it a little bit up.
Match the words with the pictures. It's interesting, huh? Milkman. Where is the milkman? See, is a milkman. So you can match it with the picture. Doctor. Can you see? Doctor क्या करते हैं? Patients को देखते हैं जब कोई बीमार पड़ जाता है. So we look for a doctor. Farmer. All of you know. See, farmer is working hard in the where? In the fields and growing the crops for us. Cobbler, what the cobbler will do? Mend your shoes. जब आपके shoes, slippers टूट जाते हैं तो कौन help करता है? Cobbler. Policeman. Safety is very important for all of us. So safety हमें कौन provide करता है? I'm so sorry. Policeman, isn't it? So that is policeman is over here. Soldier. Soldier क्या करता है? हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं, सो इन अ वे हमारी कंट्री को गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर के कंट्रीज से, कि अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो सोल्जर लुक्स आफ्टर अस. दैट इज द रीज़न हम आराम से रह पाते हैं. टीचर टीचर्स अस, तभी तो हमें नॉलेज आती है, तभी तो हम कुछ कर पाते हैं. So in a way we have to be thankful to all those people and many other people who are helping us in our day-to-day life so that we can live easily. इन सब ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है. Clear kids? So now coming to the chapter, शोभित and नीना live near their school. कहाँ रहते थे? स्कूल के पास ही रहते थे शोभित और नीना. They walk to school every morning. वो पैदल चल के स्कूल चले जाते थे. On Monday morning, शोभित and नीना ready to go to school. वो रेडी थे, जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे. कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए. आप लोग भी जाते हैं? Someone calls them. It is कोमल दीदी. एकदम से उनको कौन बुलाता है? कोमल दीदी. She helps their mother with cooking. कौन है कोमल दीदी? हेल्पर है, हेल्प करती हैं शोभित और नीना की मम्मा को कुकिंग करने में. She says today there is a big surprise lunch. क्या बताती है? कि आज तो बहुत सरप्राइज लंच है. सोच भी नहीं सकते हो आज लंच में क्या बनने वाला है, जिसका आपको इमेजिन कर सकते हो, बस आपको नहीं पता है, बट यू विल लाइक दैट. होप यू एंजॉय ईटिंग इट. तो वो कहते हैं आशा करती हूँ कि जब आओगे और इसको आप खाओगे तो अच्छा लगेगा. सो अगर आपको भी कोई ऐसे बोलेगा, यू विल ऑल्सो फील गुड ना. Everyone likes good food. Wow दीदी, whatever you cook is always yummy. वो क्या कहते हैं कि आप जो भी बनाती हो ना दीदी बहुत टेस्टी बनाती हो. थैंक यू. दे वर वेरी हैप्पी. फिर वो क्या करते हैं? थैंक यू करते हैं दीदी को और वो बहुत खुश होते हैं. दे वेव गुड बाय टू कोमल दीदी. फिर कोमल दीदी को देखो, वेव करते हैं कोमल दीदी को गुड बाय एंड लीव होम. और फिर वो अपने घर से चले जाते हैं. On their way they meet Mala's father. रास्ते में उनको कौन मिलते हैं? माला के फादर. He is a doctor. माला के फादर कौन है? डॉक्टर है. He is watering plants. वो क्या कर रहे हैं? पेड़ों को, पौधों को पानी दे रहे हैं. Their mother took their gardener Bhola to him when he had a stomach ache. एक बार जब उनको पेट में दर्द हो गया था तो उनकी मदर कहाँ लेकर गई थी? टुक देयर गार्डनर भोला. उनके गार्डनर भोला को, गार्डनर कौन होता है? माली, जो पेड़ पौधों का ध्यान रखता है. भोला टू हिम, उनके पास लेकर गई थी जब उसको पेट दर्द हो गया था. बिकॉज माला के फादर क्या है? डॉक्टर है. शोभित एंड नीना विश हिम गुड मॉर्निंग. शोभित और नीना क्या करते हैं? उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं. क्लियर? इन द पार्क दे मीट हितेश अंकल. फिर वो कहाँ पहुँचते हैं? पार्क में. और पार्क में उनको कौन मिलता है? हितेश अंकल. ही इज अ पुलिसमैन. हितेश अंकल कौन है? पुलिसमैन है. ही गोज फॉर लॉन्ग वॉक इन द पार्क. तो मॉर्निंग में हितेश अंकल
वॉक के लिए जाते हैं, सैर करने जाते हैं. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ना. खूब देर देर तक लंबी सैर करते हैं पार्क में. ओह, व्हाट हैपेंड टू हरी भैया स्कूटर? अ टायर पंचर. ही इज रिपेयरिंग इट. ही इज अ मिल्कमैन. एकदम से उनको क्या दिखता है कि हरी भैया का जो स्कूटर है उसका टायर पंचर हो गया है. तो वो कहते हैं अरे क्या हो गया, देखते हैं तो पता चलता है टायर पंचर हो गया है हरी भैया के स्कूटर का. अब हरी भैया कौन है? वो एक मिल्कमैन है, दूध वाले हैं, दूध लेकर आते हैं. ही ब्रिंग्स मिल्क एंड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. वो न्यूज़पेपर भी लेकर आते हैं और मिल्क भी लेकर आते हैं. So due to puncture, there was no newspaper on the doorstep this morning. तो क्योंकि उनका टायर पंचर हो गया था तो इसलिए आज न्यूज़पेपर मॉर्निंग में नहीं था. शोभित एंड नीना रीच स्कूल. अब शोभित और नीना कहाँ पहुंच जाते हैं? स्कूल पहुंच जाते हैं. At the gate they meet पारस अंकल. कौन मिलता है गेट पर? पारस अंकल मिलते हैं. He has a shop in the school. स्कूल में क्या है? उनकी एक शॉप है. He sells books, uniforms, school bags and stationery there. Okay? शोभित और नीना go to their classes. उसके बाद शोभित और नीना कहाँ चले जाते हैं? क्लास में चले जाते हैं. So kids, I hope you understood the chapter. In this chapter हमें क्या बताया गया है कि कौन कौन लोग मिलते हैं और वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं. So word meanings ready, all of you know. When you are ready to school means you are all set to go to the school. बिल्कुल तैयार हो कहीं पर भी जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए. Lunch, the afternoon meal, जो हम दिन का खाना खाते हैं. Surprise means जो आपने नहीं सोचा हो और कुछ ऐसा हो जाए. एंड यू आर अमेज्ड. वाओ. पंक्चर मीन्स प्रॉब्लम इन द व्हीकल. आपका साइकिल का या स्कूटर का या कार का किसी भी चीज़ का टायर पंचर हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ वी विल बी डूइंग द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. Coming to the first one, A part, darken the circle of the correct option in the OMR sheet. Shobhit and Neena walk to school because their school is nearby. हाँ, उनका स्कूल बहुत पास है. Who helps Shobhit and Neena mother in cooking? हरी भैया? No. कोमल दीदी. Yes. Mala's father is a, कौन है माला के father? He is a doctor. Whom do Shobhit and Neena meet in the park? पार्क में उनको कौन मिलता है? हितेश अंकल, जो कि एक पुलिसमैन है. ठीक है. Fill in the blanks. On dash morning, Shobhit and Neena were ready for school. What was the day? It was Monday. So I will write Monday over here. Clear, kids? They wave. किसको वेव किया था गुड बाय? दे वेव गुड बाय टू कोमल दीदी. गुड बाय. गुड बाय किया था कोमल दीदी को. माला's father was watering the, किसको वाटर कर रहे थे माला के फादर? प्लांट्स. हरी भैया इज अ, हरी भैया कौन है? मिल्कमैन. और वो न्यूज़पेपर भी देता है मॉर्निंग में. क्लियर किड्स? नाउ से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. टुडे इज अ बिग सरप्राइज लंच. दिस इज ट्रू ना? हु टोल्ड देम? माला दीदी. दे वेव गुड बाय टू देयर मदर. मदर को गुड बाय किया था? नो. दे वेव्ड गुड बाय टू कोमल दीदी. सो दिस इज फॉल्स. माला's father is a gardener. गार्डनर है क्या माला के फादर? टेल मी. नो, दिस इज फॉल्स. पारस अंकल हैज अ कैंटीन इन स्कूल. कैंटीन है स्कूल में? नो, ही हैज अ यूनिफॉर्म शॉप. इज इट क्लियर? I hope all of you enjoyed the chapter and understood the comprehension part. So that's it for today. Goodbye, take care and have a nice day.